Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about matrix. It is a chapter number 3rd of class 12th mathematics. Before starting the class, we will discuss some basics of matrix. So look at here. Matrix, it is also known as a matrices. Matrices, it is a plural of matrix. So both names can be used in matrix here. So according to the definition of matrix, we will learn it is a rectangular arrangement of number and functions. यानी rectangular arrangement of number and functions is called matrix. तो numbers के बारे में हम सभी लोग जानते हैं. Numbers are including like negative numbers, like negative 1, 0 and positive. Then all are the numbers like infinity negative to infinity positive. क्लियर है? नंबर्स के बारे में तो हम सभी लोगों को पता है, लेकिन फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर. हम लोग मैट्रिक्स के अंदर फंक्शंस का यूज बहुत ज्यादा करते हैं. तो फंक्शंस क्या है हमारे अंदर देख लेंगे. फंक्शंस इसके अंदर कहलाते हैं, जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस वगैरह में पढ़ा होगा, लाइक f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड fy इज इक्वल्स टू 7y स्क्वायर प्लस 4. सो व्हाटएवर दिस काइंड्स ऑफ द अरेंजमेंट आर कॉल्ड फंक्शंस. Next, trigonometric ratios, जैसे sin theta plus cos theta, these are also included in functions. So all those types of numbers and all those types of functions will be arranged into the rectangular form. So what is the means of rectangular here? In matrix, we have some identities like what the brackets we have to use here. So there are the two types of brackets. Like first one is this type of brackets we can use here, and second one is this type of bracket we can use here. मोस्टली आप लोगों को अगर एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से मोस्टली आपको ये ब्रैकेट्स यूज करने के लिए मिलेगा. तो यूज करेंगे हम लोग इस ब्रैकेट्स को यहाँ पे, बट आप लोग इस ब्रैकेट्स को भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए किस तरीके से यूज करते हैं. नंबर एंड फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर कैसे आएगा उस चीज को हम लोग रीड करते हैं. अगर इस टाइप का ब्रैकेट्स आपके पास, अगर आप नंबर्स यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं. तो हियर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेक हियर 2 3 4 5 6 7 हियर. So it is called a matrix. It is a simple matrix, and इस simple matrix के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए. For example, first one is there are elements, there are rows. Third one, there are columns. So all those things we need to know, that where is row, where is columns, where is elements. Students, if I am talking about the elements, so all the numbers or the functions, all the number and the functions which are inside of the brackets is called element. They all are the elements. वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका. लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे 2 जो है वो एक एलिमेंट है, 3 जो है वो एक एलिमेंट है, 4 जो है वो एक एलिमेंट है, 5 जो है वो एक एलिमेंट है, 6 7 एज इट इज, they all are the elements. It is also may be used like that कि यहाँ पर हम लोग sin थीटा रख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग cos थीटा रख लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा रख लेते हैं, यहाँ पे cot थीटा रख लेते हैं. So sin is also an element of the matrix. Tan, cos, cot, they all are the matrix. So guys, look at here. Elements are there 2, 3, 4, 5, 6 and 7. But what about the rows? If I am talking about the rows, so the horizontal line, what is the means of that? Horizontal line आप लोगों ने बहुत बार फिजिक्स के अंदर देखा होगा, horizontal and vertical. So horizontal lines are called rows, that is row, and vertical lines, यानी कि this one 2 to 5, this is called column. So horizontal lines are called row and vertical lines are called column. And these elements separately 2, 3, 4, etc. These are all called elements. आप सुनते आ जाओ. So let's students, we will discuss about the types of matrix. Like firstly we will discuss about the order of matrix, second we will discuss about number of element, third name of element. यानी कि ये तीनों चीजें एक ही क्वेश्चंस के अंदर हमसे हमेशा पूछी जाती है. कोई भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, वो उसके अंदर हमें ये सभी चीजें फाइंड आउट करनी है कि इसका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या है हमारे पास एलिमेंट्स का. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. मैंने पहले नीचे से लिख दिया आपके लिए कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जब हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. एंड मींस दैट इसको क्रॉस भी बोल सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज into number of columns. So let us consider, we will take one example to discuss about the number of rows and number of columns in the order of matrices. First one is
It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a matrix. If it is a matrix, then how we will find the number of rows and number of columns here? So let us consider. I just have told you that the horizontal line is called row, that is R1, and that is R2. And the number of the vertical lines, in the sense of the vertical lines, we will call column 1. So this is C1 column 1, and it is column 2, and it is column 3. So number are called horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. So यहाँ पर C1, C2, C3 3 rows हैं, 3 columns हैं, and 1 and 2 क्या है आपके rows हैं. तो number of rows और number of columns का कैसे हम लोग order बनाते हैं इस चीज को देखते हैं. For example, if I have each this example, so we will take here. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आपसे कोई बोले कि इसका ऑर्डर डिफाइन करके दिखाओ, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, सो हम लोग ऑर्डर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रोज इनटू कॉलम. तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 1 and 1 2. सो नंबर ऑफ रोज आर देयर 2 and number of columns are there 1 2 and 3. So 2 into 3 is the order of matrices. So guys, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Second one, so we have studied about the order of the matrix, and next we will discuss about the number of element. So number of element को find out करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. number of element equal to multiply of number of rows and number of columns. यानी कि rows और numbers of rows and columns के हम लोग क्या करते थे? multiply. For example, look at it. For example, we have a take a number like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It is a matrix. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि number of rows क्या है, number of यानी कि order of matrix क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? Order of matrix मैंने आपको बता रखा है, number of rows into number of columns. तो यानी कि rows पहले लिखेंगे तो row कितनी है इसमें? R1 and R2. So क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी कि 2 cross कितना हो जाएगा number of columns क्या है? 1, 2 and 3. So 2 cross 3. तो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. लेकिन हम लोग फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट. इफ वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास आइडेंटिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास 3. सो 2 into 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6. सो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर आप लोगों को रीचेक करना है तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 6 एलिमेंट. तो गाइस ये तो बड़ा इजी था हमारे पास कि यहाँ पे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की बात की गई थी. अगर हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में अगर मैट्रिक्स कोई बनी होती है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की, तो 2 3 6 वी विल इंक्लूड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. So next one is the name of the element. So guys, it is a most important topic that name of element को हम लोग कैसे रखते हैं मैट्रिक्स के अंदर में, तो इस चीज के बारे में हम लोग और देखते हैं. So guys, third one is name of the elements. तो elements का नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार समझना. मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ. लेट्स एग्जांपल्स लाइक अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 and 6. स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए जो एग्जांपल्स दिए हैं वो केवल 1 2 3 4 5 6 एक ही नंबर का एलिमेंट्स का एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट का हम लोगों ने एग्जांपल दिया हुआ है. इससे आप कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को ज़्यादा. तो प्लीज फोकस करना कि अगर मुझसे बोल दिया जाए कोई भी एक ही मैट्रिक्स है, ए एक ही मैट्रिक्स है हमारे पास में, और इस मैट्रिक्स में जो नेम्स है हमारे पास एलिमेंट्स के वो क्या है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है, सेकंड एलिमेंट का नाम क्या है, थर्ड एलिमेंट का नाम क्या है, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्लीज करिए. बेसिकली जो हमारे पास आइडेंटिटीज होती है कि हमारी ये एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग ए आई जे से करते हैं. और यहाँ पर क्या है, ए एक साइलेंट वर्ड है जो सभी के लिए यूज होगा. एवरी एलिमेंट विल डिनोटेड बाय द ए, बट आई जे विल बी डिफरेंट. व्हाट आर द मीन्स ऑफ आई एंड जे हियर? सो आई व्हिच रो एंड जे इज व्हिच कॉलम. व्हिच कॉलम्स. तो आई का मतलब है कि वो कौन सा रो है और जे का मतलब है कि वो कौन सा कॉलम है. यानी कि यहाँ पर आई की जगह पर रो रख देना है और जे की जगह पर कॉलम रख देना है. तो आप लोगों को आपके नेम्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर लाइक
it is a row, it is row, it is column. So first element name is, this is C1, it is C2, it is C3, this is R1 and it is R2 here. So let us consider guys, if it is C1 and R1, so the name of the element is, look at here, I am just erasing this word, A कैपिटलाइज करके हम लोगों ने बोला A सिंपलाइज फॉर्म में ये हमारा बेस रहेगा हमेशा. I की फॉर्मेशन, I is called which row, which row. So I, तो रो कौन सा है हमारे पास में, फर्स्ट है, तो यहाँ फर्स्ट लिख दिया. और J यानी which कॉलम, सो कॉलम भी कौन सा हमारे पास में, फर्स्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया. यानी कि जो नेम ऑफ द एलिमेंट 1 है उसका नाम है A11 यानी A11. अगर मैं बात करता हूँ सेकंड एलिमेंट की, तो इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन हमारा बेस A होगा. और I की फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये होता है which रो. तो रो देखते हैं, तो रो तो हमारे पास 1 ही है, लेकिन अगर मैं कॉलम की बात करता हूँ तो कॉलम क्या है मेरे पास में, 2 है. यानी कि हो जाएगा A12, A12 कहते हैं इसको. अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा बेस हमारे पास A. और I की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज which रो, तो रो इज फर्स्ट एंड which कॉलम, दैट इज 3. सो ये हो जाएगा A13 हमारे पास. If I am talking about the 4, so 4 is the base is A and which first is which row, so row is second and column is first. Second one is which row, row is second and column is also second, so it is A22. Third one is which row, so A is the base, row is second and the column is third. So A23, that should be the name of the sixth element. Is it clear or not? Please compare all the numbers. If I am talking about the numbers, so A11 is going to represent 1. A12 is going to represent what? 2. A3 is going to represent what? 3. A21 is going to represent 4. And A22 is going to represent 5. A23 is going to represent 6. So these are the name of elements. So look at here guys, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को. हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 3 चीजें देखा. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड नेम ऑफ द एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे पास. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करता हूं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इज 2 and number of columns are 3. So 2 cross 3, this is called order of matrix. But if we will talk about the number of elements, so we will cross and we will do the multiplication of the number of rows and number of columns. And 2 3 is 6, it is the answer of the second one. Third, the name of the element. Name of the element, we have one example like matrix A is equals to 1 2 3 4 5 6. So we will represent the name according to the rows and columns. Horizontal lines are called row and vertical lines are called column. So row 1 and row 2, column 1, column 2, column 3. So one element will represent A is the base, I is number of which row, so row is the first, and J is which column, so column is the first. So A11 is called 1. यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि वन एलिमेंट का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे वन एलिमेंट का नाम इज A11. दैट्स इट ऑल. सभी एलिमेंट्स में काउंट होता है. अगर आप बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स लेके चलेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगे, बट आपको ऑर्डर सेम रखना है Aij and Aij. दैट्स इट ऑल. थैंक यू वेरी मच. So guys, if you like my videos, please like and subscribe it. In my next video, I will teach you the types of matrix, and this video is going for the 12th and NDA examinations. I will give you the best and best of tricks which you can do within 5 seconds. Thank you very much.